हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पार्ट 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन बी ऑल बी टुगेदर, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots as the ship rose to the top of each wave. We could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double-lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned whale-skin and life jacket, and waited. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towards our aft to the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. Gigantic means huge, विशालकाय. Jib means a triangular sail, जहाज की मुख्य त्रिकोणीय पाल. Enormous means big, विशाल. Stern means back part of the ship, जहाज का पिछला हिस्सा. Impending disaster means imminent catastrophe, असंभावी बर्बादी. Ominous means threatening, डरावना. Frightful means terrible, डरावनी, भयावह. 2 जनवरी की उषा काल में लहरें विशालकाय थीं. हम मात्र एक छोटी त्रिकोणीय पाल लेकर यात्रा कर रहे थे और अब भी 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे. जहाज जब प्रत्येक लहर की चोटी पर पहुंचता था तो हमें असीम दीर्घाकार समुद्र की अपनी ओर घूमते हुए आता दिखाई देता था. हवा तथा बौछार की चीख कानों के लिए कष्टकारक थी. नाव की गति धीमी करने के लिए तूफानी त्रिकोणीय पाल नीचे कर दी तथा नाव को बांधने वाली मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से में बांध दिया. फिर हमने हर चीज़ को दोहरा करके बांध दिया और फिर जीवन रक्षक नौकाओं, उनसे बंधी रस्सियाँ, जल रोधक कपड़े तथा जीवन रक्षक जैकेट पहन ली और प्रतीक्षा करने लगे. आगामी विनाश का प्रथम संकेत लगभग 6 बजे अनिष्टकारक खामोशी के साथ आया. हवा थम गई तथा आसमान तुरंत काला हो गया. फिर एक घनघोर गर्जना हुई और एक विशालकाय बादल जहाज के पिछले भाग की तरफ छा गए. भय के साथ मैंने महसूस किया कि वह बादल नहीं था, परंतु एक ऐसी लहर थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी. यह पूरी तरह से लंबवत दिखाई दे रही थी तथा अन्य लहरों की अपेक्षा लगभग 2 गुनी ऊंची थी, जो टूटे हुए पर्वत शिखर की तरह लग रही थी. द रोअर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्म मूव्ड अप टू फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. Wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rail and sailed through the air into wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a ragdoll. My left rib cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. Water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dare not abandon the wheel to investigate. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. "We are sinking,"
She screamed, "The decks are smashed. We are full of water. Take the water, take the wheel," I shouted as I scrambled for the hatch. Tremendous means dreadful, भयंकर, tolerant means violent flow of water, जल का भयंकर प्रवाह. Consciousness means awareness, चेतना. Unexpectedly means without hope, बिना उम्मीद के. Capsizing means overturning, उलट रहा. Horizontal means parallel to the horizon, क्षैतिज. Subsequent means following, आगामी. जब नाव का पिछला हिस्सा लहर के ऊपरी भाग की ओर उठ गया तो गरज गड़गड़ाहट में बदल गई तथा पल भर के लिए मैंने विचार किया कि हम इस पर चढ़कर पार हो जाएंगे, परंतु तभी एक भयंकर धमाके ने नाव के डेक को हिला दिया. अरे हरे सफ़ेद जल की प्रचंड लहर ने नाव पर कहर ढा दिया. फिर सिर पहिए से टकरा गया और मैं सचेत था कि मैं नाव से उड़कर लहरों में डूब रहा था. मैंने अपनी आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया और ज्यों-ज्यों मैं होश खो रहा था मैंने पूर्णतः स्तब्धता अनुभव की. उम्मीद के विपरीत मेरा सिर पानी से बाहर निकला. कुछ मीटर की दूरी पर वेव वाकर करीबन उलटने वाली थी. उसके मस्तूल लगभग क्षैतिज हो गए थे, पर एक लहर ने उसे झटके से सीधा कर दिया. मेरे जीवन रेखा झटके के साथ कस गई. मैंने सुरक्षात्मक सलाखों को पकड़ लिया तथा हवा में कूदकर वेव वाकर की मुख्य लंबी कड़ी तक गया. परिणाम स्वरूप लहरों ने मुझे डेक पर कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर पटका. मेरी बाईं पसलियाँ टूट गई. मेरा मुँह खून व टूटे दांतों से भर गया. इसी तरह मैंने रक्षात्मक पहिया खोज लिया, नाव के पिछले हिस्से को आगामी लहर के लिए सीधा किया तथा पहिए को कसे रखा. सर्वत्र पानी ही पानी था. मैं अनुभव कर सकता था कि नाव में नीचे भी पानी है, परंतु मैं नियंत्रक पहिए को छोड़कर यह तहकीकात करने का साहस नहीं कर सकता था. अचानक सामने का दरवाज़ा खुला और मेरी दिखाई पड़ी. हम डूब रहे हैं, वह चिल्लाई. डेक चकनाचूर हो गए, हम पानी से लबालब हैं. पहिया लोग दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मैं जोर से चिल्लाया. लैरी एंड हर्ब वेयर pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inward. Cloths, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin. "Are you all right?" I asked. "Yes," they answered from an upper bunk, "but my head hurt a bit," said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bump head. After finding a hammer, screw and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side wedged open, we were talking water with each wave that broken over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping hole. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. More problem arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins, and the electric pump short circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been brushed overboard, along with the forestay-sail, the jib, the dinghies and the main anchor. Crazy means zigzag, टेढ़े मेढ़े. Bulged means swallowed, सूजा हुआ. Sloshed about means moved with a splashing sound, छपछपाती ध्वनि करते गए. Bump means collision, टकराव. Deflected over means turned aside, एक तरह का कर देना. Debris means rules, मलबा. Threateningly टेरिबली, भयावह रूप से. Dinghies means अनफ्लैटेबल रबर बोट, रबड़ की नौका. एंकर मीन्स हैवी मेटल स्ट्रक्चर फॉर फास्टनिंग ए शिप, जहाज का लंगर. लैरी और हर्ष पागल व्यक्तियों की तरह पानी निकाल रहे थे. टूटे हुए तख्ते अजीब ढंग से लटक रहे थे. दाईं ओर का संपूर्ण उभरा हुआ भाग, कपड़े, क्रॉकरी, चार डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में छपछपाने की ध्वनि करते हुए उतरा रहे थे. मैं आधी दूर तक तैरा तथा कुछ दूर तक रेंगकर बच्चों के कक्ष में पहुंचा. "तुम बिल्कुल ठीक हो?" मैंने पूछा. "हाँ," उन्होंने ऊपरी सोने वाली
सीट से उत्तर दिया, परंतु मेरा सिर कुछ दुख रहा है। अपनी आंखों के ऊपर एक बड़े उभार की ओर इशारा करते हुए, मेरे पास सूजन से उभरे हुए सिर के विषय में सोचने का वक्त नहीं है। हथौड़ा, पेंच और किरमिच खोजकर मैंने डेक वापस आने का संघर्ष किया। नाव के स्टारबोर्ड की तरफ का हिस्सा टूटकर खुलने के कारण प्रत्येक लहर के टकराने से पानी अंदर आ रहा था। अगर मैं कुछ मरम्मत न कर सकता तो हम निश्चित रूप से डूब जाते। मैं जैसे जैसे मैंने खुले सुराखों पर कैनवस किरमिच खींचकर घुसेड़ दी और दरवाज़ों के जल अवरोही कवर आवरण को सुरक्षित कर दिया। कुछ पानी से बहता रहा, परंतु अधिकतर पानी अब दूसरी तरफ टकराकर मुड़ जाता है। कक्ष के आसपास तैरते हुए मलबे से जब हमारे हैंडपंप बंद होने लगे तथा विद्युत पंप शॉर्ट सर्किट से खराब हो गया, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गईं। जल स्तर खतरे के स्तर से ऊपर बढ़ गया। डेक पर वापस आकर मैंने देखा हमारे 2 अतिरिक्त हैंडपंप तथा आगे का मुख्य पाल, त्रिकोणी पाल, छोटी नौकाएं तथा मुख्य लंगर से टूटकर दूर जा गिरे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।